السلام علیکم دوستوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم و شان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی، اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اسلام کی دعوت کیسے دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو معلومات کی ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ قوم کو توحید کی دعوت۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے۔ تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے بتوں کو توڑنے کی اعلانیہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑے سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مشرکین کی گفتگو۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹ اوندھے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے
कुछ लोगों को ख्याल आया कि इब्राहिम ने कहा था कि वह बीमार है और उन्होंने अपने बुतों की मजम्मत करने को कहा था। सब ने ये मशवरा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। सब जमा हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। कौम के लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि सच बता, क्या तूने सब किया है? जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते? वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहने लगे, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें पता नहीं ये बेज़ुबान हैं, ये बोल नहीं सकते? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम उस चीज़ की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ नफ़ा ना दे सके और ना नुकसान पहुंचा सके। तअज्जुब है तुम पर और उन पर जो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं है? इस सब के बावजूद भी वह कुफ्र पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना और आग सलामती के साथ ठंडी हो जाना। इतने वज़ेह दलील के बावजूद भी वो कुफ्र पर कायम रहे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया। एक मैदान का इंतखाब किया, फिर उस मैदान को पत्थरों से घेर दिया और सबको हुक्म दिया, लकड़ियाँ जमा करके उस घेरे में रखा जाए। लकड़ियाँ जमा की गई और फिर लकड़ियों को आग लगा दी गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया गया और उससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बाज रिवायत में आया है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, अगर कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वह अल्लाह के हुक्म से सलामती के साथ ठंडी हो गई। बाज़ रिवायतों में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों वो राहत व सुकून था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने ईमान न लाया। नमरूद का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू। आग का वाक़या जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह ताला के बारे में पूछा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लाया जाए और दोनों को सजाए मौत का फरमान था। नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और एक को रिहा कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वह भी ज़िंदा कर सकता है और मार सकता है। इस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर काफिर बादशाह हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। सिवाय इबरत पकड़ने के उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ने का जाने को कहा। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम के हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए और अपने चचा हारान की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। सितारा परस्त को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत। हर्रान के लोग बुत परस्त नहीं थे बल्कि सितारों की पूजा करते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सितारों की परस्ती करते हैं तो इरादा किया कि उनको बताएंगे कि सितारों की पूजा करना बातिल है। क्योंकि वे लोग सितारा परस्त थे इसलिए उनकी इबादत का वक्त रात का होता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दिखाने के लिए कि उनकी इबादत बातिल है, एक रात अल्लाह ने आसमान के दरवाजे और पर्दे खोल दिए तो आप अलैहिस्सलाम चांद सितारे और आसमान की सल्तनत को देखा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक रात बस्ती वालों के साथ निकले। अचानक एक सितारा तुलू यानी निकला जो देखने में खूबसूरत और उसकी चमक दमक बहुत थी। आप अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक से कहा, ये मेरा रब है। फिर जब कुछ देर बाद सितारा गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया, ये रब कैसे हो सकता है जो छुप जाए बस में गुरूब होने वाले को पसंद नहीं करता। अगले रोज़ फिर सब लोगों के साथ निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से
ज़्यादा खूबसूरत और रोशन था। लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने हिदायत नहीं की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू कहाँ है, मेरी रहनुमाई फरमा। इन बातों से आप अलैहिस्सलाम उन लोगों की रहनुमाई फरमा रहे थे ताकि वह गौर करें। फिर जब दिन में सूरज तुलू हुआ तो आप कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर उनके तरह मुतावज़े होकर कहा, तुम रात को छोटे छोटे रब की पूजा करते हो, क्यों ना इस एक ही बड़े रब की पूजा करो। लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं तो तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ, ये माबूद कैसे हो सकते हैं, इनमें तो तब्दीली आती रहती है। फिर अपने कौम की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैं अपना रुख उसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों को यकसू होकर पैदा किया। मैं सिर्फ करने वालों में से नहीं हूँ। फिर भी वे लोग नहीं माने। मिस्र के लिए हिजरत। जब इतना समझाने के बावजूद ईमान ना लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा मिस्र के लिए हिजरत की। वहाँ के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीन व जमील है। उसने अपने करिंदे को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आ और साथ ही उससे पूछना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका खाविंदा हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर अल्लाह के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी। फिर उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वे तुमसे पूछे कि ये आदमी कौन है तो तुम कहना ये मेरे भाई हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम बोले, ए सारा, इस सर ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, इस लिहाज से हम दोनों दीनी भाई बहन हैं। फिर बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया और पूछा, ये औरत कौन है। आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन की खातिर तौरैया फरमाया। 3 मौके पर तौरैया फरमाया, वो ये है, पहला, मेले के गरज से उन लोगों से कहा था कि मैं बीमार हूँ। दूसरा, जिस बुत के गले में कुल्हाड़ा था वहाँ आपने फरमाया था ये काम इस बड़े बुत का है। तीसरा, और ये कि सारा अलैहिस्सलाम दीनी बहन करार दिया। जालिम बादशाह की बुरी नीयत और अंजाम। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वह बादशाह बदकार शख्स है तो अल्लाह से दुआ किया, ऐ अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपनी हविंदा के सिवा सबसे महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत ना कीजिए। जब उस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सल हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो चीखने चिल्लाने लगा, बड़ी कोशिश की लेकिन हाथ की हरकत ना दे सका। ये सब देखकर सारा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गई और सोचा कि अगर ये मर गया तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर ही होगा। आपने फिर ये दुआ किया कि जिसकी वजह से आपका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वह फिर भी ना माना और फिर हाथ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया। दूसरी बार भी आपने दुआ किया और दोबारा उसका हाथ जम गया और फिर आपके दुआ से ठीक हुआ। वह जालिम फिर भी ना माना और तीसरी बार उनके तरफ अपना हाथ बढ़ाया, इस बार भी उसका हाथ जम गया। अब वह सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आड़े नहीं आऊँगा। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया और वह अपने करिंदे को बोला, तुमने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी सर्कस जिन को लाए हो। फिर उनको इज्जत व इकराम के साथ आज़ाद कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत की और फ़िलिस्तीन में रिहाइश वज़ीर हुए, वहीं ज़िंदगी गुजारने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ रहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की तरफ भेजा, जहाँ के लोग सर्कस और बददीन हो चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 175 साल की उम्र वफ़ात पाई। आपसे पहले हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई और हज़रत सारा 127 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत इब्राहीम के साथ साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जुड़ा है, लेकिन एक ही वीडियो में ये सब दिखाना नामुमकिन है। तो मिलते हैं किसी नए से वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।